My name is Kashika Valla. I did my graduation from Pune. After that, I did my clinical nutrition from US. How is psychology related to diet? Basically, whatever we eat, it starts from the gut. Unless and until you are not mentally very much comfortable with the food what you are having, you can't do the diet, and there are no results until and unless you are not happy from inside. Calorie deficit is basically जितनी एक बॉडी को कैलोरीज चाहिए वो कैलकुलेट करके अकॉर्डिंग टू हाइट एंड अकॉर्डिंग टू योर वेट हम एक निकालते हैं कि एक इंसान को कितना कैलोरी चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पर्सन नीड्स 1500 कैलोरीज और 1600 कैलोरीज अ डे और उसने अगर वेट लॉस करना है तो हम माइनस में कैलोरीज कर देते हैं. 200 कैलोरीज माइनस करके उसका डाइट प्लान बनाते हैं, उसको हम कैलोरी डेफिसिट कहते हैं. Okay. Welcome to Dopamine High. How are you feeling today? Hi Sarsha, I'm feeling good. Thank you for calling me in the show. Can you introduce yourself for the audience? Yes, my name is Kashika Valla. I did my graduation from Pune. After that, I did my clinical nutrition from US. After that, I did my Ayurveda and nutrition from Kerala, India. After that, I have done some seminars on diabetes and other health issues. After that, I felt that I should know my clients well. For that, I did diploma in mental health. So, can you explain how is psychology related to diet? Basically, whatever we eat, it starts from the gut. Unless and until you are not mentally very much comfortable with the food what you are having, you can't do the diet, and there are no results until and unless you are not happy from inside. Before giving a diet to a client, we should know his mental status. If a client is anxious, the diet is not going to work on it, right? We have to work first on his anxiety, and after that we have to work on food. There are some comfort foods which do calm anxiety. When a person is having issues of anxiety or some mental issues, other kind of suppressions, at that time we do give such kind of foods which are really helpful in losing weight or gaining weight or any type of problem the people are having. Those diets do work very well when they are combined with your mental status and food. Can you tell few food items that are good for people with anxiety or depression? There are many foods. Actually, we first find out what is the comfort food of a person. We take full history of a client, we know his mental status, then we, after counseling, we come to know what is his comfort food. Some people are comfortable with spicy food, some are comfortable with fruits, some are comfortable with juices. After knowing the comfort food of a person, then we customize their diet plan accordingly, so that if they are happy in eating their favorite food, then only the diet is going to work. Can you explain the link between mind and gut? The main microbiomes in our body are produced in the gut. Right. There are small microtransmitters जो हमारे gut से brain को एक message देते हैं. So there is a big link. If we are eating a food which is very comfortable food for us, वो brain को एक message आएगा that the food we are having is mind friendly. तो it works very well. एक कॉम्बो हो जाता है, माइंड इज़ हैप्पी, डोपामाइन रिलीज हो जाता है एंड थिंग्स स्टार्ट वर्किंग ऑन ए पर्सन. देयर इज़ अ ग्रेट लिंक बिटवीन माइंड एंड गट. दिस इज़ द मेन थिंग. आपने भी मेंशन किया डोपामीन रिलीज हो जाता है. वैसे ही आजकल एक डोपामीन डिटॉक्स डाइट आई है. सो डज इट एक्चुअली वर्क? There is no term called dopamine detox, right? There is dopamine friendly diet. It means you eat the food which is your very comfortable food. आजकल period syncing सुना होगा आपने. ऐसा होता है कि when a person is going through menstruation phase, वो अपना regime उस हिसाब से बनाते हैं because mood fluctuations होती हैं. Mood fluctuations में some people like chocolates, कुछ को fruits अच्छे लगते हैं, some tangy food कई लोग पसंद करते हैं. तो अब क्या हो गया है, we plan the diet अकॉर्डिंग टू योर मूड. उसमें ये होता है कि एक्सरसाइज का रिजीम, फूड रिजाइम एंड योर स्लीप रिजाइम उसी हिसाब से कस्टमाइज़ किया जाता है कि इन पीरियड्स आप कंफर्टेबल रहें, पेन लेस रहें और आप अपना वेट भी शेड करें. इस
उसी को हम पीरियड सिंकिंग कहते हैं। दिस इज़ ऑल डोपामाइन बेस्ड। जब आप हैप्पी रहोगे, हैप्पी हार्मोन निकलेंगे, आपकी बॉडी से रिलीज होंगे और दैट विल वर्क पॉजिटिवली ऑन यू। डोपामाइन डिटॉक्स करके इज नॉट, इट्स अ रॉन्ग टर्म। देर इज़ नथिंग कॉल्ड, इफ यू विल डिटॉक्स अ गुड हार्मोन फ्रॉम योर बॉडी, then how will the things work? Now people say yeah, we love this activity, we will अपने आप को एक लालच देते हैं कि we will this gives a dopamine release to us, particular thing gives a dopamine release, हम इससे खुद को कट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लाइक गेमिंग, हम गेमिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमारा टारगेट वेट लॉस का कंप्लीट नहीं होता। दिस इज़ काइंड ऑफ डोपामाइन डिटॉक्स, बट दिस डजंट वर्क ऑल टाइम। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अगर हम पैटर्न से और एक अच्छे तरीके से और एक रिजीम को फॉलो करें, प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करें, एक्सरसाइज फॉलो करें, कैलोरी डेफिसिट में चले जाए, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क बेटर रादर देन ब्लैकमेलिंग योर सेल्फ फ्रॉम थिंग्स। अभी आपने मेंशन किया कैलोरी डेफिसिट, व्हाट इज कैलोरी डेफिसिट? कैलोरी डेफिसिट इज़ बेसिकली जितनी एक बॉडी को कैलोरीज चाहिए वो कैलकुलेट करके अकॉर्डिंग टू हाइट एंड अकॉर्डिंग टू योर वेट हम एक निकालते हैं कि एक इंसान को कितना कैलोरी चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन नीड्स 1500 कैलोरीज और 1600 कैलोरीज अ डे, और उसने अगर वेट लॉस करना है तो हम माइनस में कैलोरीज कर देते हैं, 200 कैलोरीज माइनस करके उसका डाइट प्लान बनाते हैं, उसको हम कैलोरी डेफिसिट कहते हैं। That is calorie deficit. When you give a person calories which he needs, we will minus the calories actually what is needed for maintenance. If we minus few calories from that, person will go in calorie deficit and he will start losing the weight. आजकल बहुत लोग वीगन टर्न हो रहे हैं, ऐसा क्यों है एंड इज इट गुड फॉर आवर हेल्थ? टर्निंग वीगन इज़ नॉट दैट सो बैड अनलेस एंड अनटिल आप अपनी सारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी ना करें। वॉट पीपल डू, आई हैव सीन मैनी केसेस, बच्चे आते हैं, दे आर यंग, दे डोंट नो हाउ टू डू द डाइट, मदर्स कम टू मी, बच्चों में डेफिशिएंसीज हो गई होती हैं वाइटामिन्स की, मिनरल्स की, कैल्शियम की, क्योंकि वीगन डाइट डजंट प्रोवाइड अस एवरीथिंग, दे आर डेफिसिट इन मैनी थिंग्स। इस वजह से अनटिल एंड अनलेस आप किसी के अंडर वीगन डाइट नहीं करते या आप प्रॉपरली नहीं करते, अगर आपने वीगन डाइट करनी है यू नीड सप्लीमेंट्स, आप सप्लीमेंट्स के साथ वीगन डाइट कर रहे हैं तभी ये ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट फॉलोइंग इन अ वेरी गुड वे, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स गोइंग टू गिव यू डेफिशिएंसीज। इसके लिए कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए? बिफोर डूइंग एनी डाइट हमें अपने पैरामीटर्स चेक कराने चाहिए, KFT, LFT, HB1AC तो ज़रूर कराना चाहिए। उसके बाद हमें अपना कैल्शियम, हमें अपना वाइटामिन सारा मॉनिटर करना चाहिए। और अगर हम इस टाइप की कोई डाइट कर रहे हैं तो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स हमें अपना रीचेक करानी चाहिए सारी चीज़ें, और जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो थ्रू सप्लीमेंट्स हमें पूरी करनी चाहिए। आजकल लोग ग्लूकोज चेक करते हैं और वो इस लूप में फंस जाते हैं कि बार बार चेक करते हैं। सो इज़ इट अ गुड थिंग? बिकॉज एज यू सेड यू आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी ऑल्सो, तो साइकोलॉजिकली वो वायर्ड हो जाता है बार बार चेक करने के लिए। अगर हम अपना ग्लूकोज मॉनिटर कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो प्री डायबिटिक हैं या वो लोग जो टाइप 2 डायबिटिक हैं। जो लोग नॉर्मल हैं और ऐसी कैजुअली दे वांट टू चेक देयर ग्लूकोज मीटर इज़ नॉट सो हेल्दी। हर टाइम अपना ग्लूकोज चेक करना, वो क्या होता है, हमारा अटेंशन एक ही तरफ चला जाता है, सिर्फ शुगर लेवल्स की तरफ, और वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। और कॉन्शियस होना बार बार एक ही चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपके पैरामीटर्स बार बार आफ्टर फूड या बिफोर फूड नहीं ठीक है, आप टाइप 2 डायबिटिक हो या आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप प्री डायबिटिक हो, देन दीज ग्लूकोमीटर्स आर गुड, नॉट फॉर अ हेल्दी मैन, दीज आर नॉट गुड। इससे साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है, मुझे लगता है। दिस इज़ नॉट नीडेड, आई थिंक। अभी आपने डायबिटीज़ की बात की, तो अगर इफ़ समबडी इज़ डायबिटिक, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट यू शुड लुक इनटू एंड आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए? If a person is diabetic, he should first cut sugar, right? Juices नहीं लेने चाहिए, फ्रूट हमें खाना है तो विद फाइबर खाना चाहिए। उसके बाद हमें HB1AC आफ्टर 3 मंथ्स के बाद रिपीट करना चाहिए। हमें अपनी किडनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, लिवर हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हमें प्रॉपर अपना एक 1 आवर अपने आप को डेडिकेट करना चाहिए, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी, इधर वॉक या कोई स्पोर्ट्स हो, या हमें 1 आवर अपने आप को एक्सरसाइज करनी ही करनी है अगर हमें अपना डायबिटीज़ हेल्दी रखना है तो।
राइट। और मेडिकेशन नहीं छोड़नी। कई लोग कहते हैं कि अगर आप प्री डायबिटिक हो, राइट, आपने मेडिकेशन शुरू की, देयर आर चांसेस कि आप वहीं पे स्टॉप हो जाए, आपका शुगर कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर आप पास्ट 10 ईयर्स से मेडिसिन खा रहे हैं या 5 ईयर्स से या 6 ईयर्स से, एक बार आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दी, फिर जैसे कोई कहता है आप आयुर्वेदा करो, आप ये करो, अगर आपका कंट्रोल है मेडिसिन मत लो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर हम एब्रप्टली मेडिसिन छोड़ेंगे, अंदर ही अंदर से डायबिटीज़ हमारे पैनिक्रियाज को, किडनीज को इफेक्ट करना शुरू हो जाएगी। ये करें कि लो डोज पे आएँ, हायर डोज पे हम लो डोज पे आएंगे, बट डोंट स्टॉप द मेडिसिन, इट्स नॉट द राइट वे। क्योंकि आई हैव हर्ड मैनी डाइटिशियंस सेइंग कि हम आपकी डिजीज़ को बिल्कुल फिनिश कर लेंगे, यू वोंट नीड द मेडिसिन मोर। वो उसी केस में होता है जब आप प्री डायबिटिक हो। अगर आपकी हिस्ट्री है फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स या मोर देन 2 ईयर्स आप डायबिटिक हो, यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप द मेडिसिन। इंस्टेड आप उसको कंट्रोल करके बिल्कुल लोवेस्ट डोज पे आ सकते हैं। Just like diabetes, heart attack is on the rise. Youngsters are getting heart attack. जिम में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, ऐसा क्यों है? बेसिकली आजकल लोग ना क्विक फिक्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। वो जल्दी करने की कोशिश में इतनी कम कैलोरीज कर लेते हैं, और ये जो आपके सप्लीमेंट्स हैं इतने ज़्यादा लेने शुरू कर देते हैं कि, और एक्सरसाइज का एक रिजाइम होता है, यू हैव टू डू एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट नाइट जिम जाना, फूड हैबिट्स अपने ठीक नहीं करने, दीज आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से आजकल ये हो रहा है। और सप्लीमेंट्स काइंड ऑफ प्रोटीन, आई एम नॉट अगेंस्ट प्रोटीन, बस इसके अलावा भी ये जो एनर्जी ड्रिंक्स एंड ऑल, दे आर नॉट गुड फॉर अस, दे मे बी द रीजन ऑफ दिस थिंग। या और स्ट्रेस बहुत है, बेसिकली देर इज वेरी मच ऑफ स्ट्रेस, पीपल आर टेकिंग स्ट्रेस ऑन लिटिल थिंग्स, दिस ऑल्सो इज द रूट कॉज ऑफ एलिमेंट्स। So is protein powder good for health? Because once a doctor told me that not to take protein because इससे PCOD, PCOS हो रहा है। वो हम क्लाइंट्स को देखते हैं इफ़ दिस इज़ अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर प्रोटीन पाउडर और नॉट। आजकल होममेड प्रोटीन पाउडर्स भी आए हैं जो आप अपने घर के नट्स से, लिग्यूम से बना सकते हैं, दैट्स वेरी सेफ टू कंज्यूम। इसके अलावा अगर आपने वे प्रोटीन लेना है, वी हैव टू सी वेदर द कैंडिडेट इज़ गुड फॉर इट। आई एम नॉट अगेंस्ट द प्रोटीन्स, बट प्रोटीन, इफ़ वी आर टेकिंग प्रोटीन, वी नीड टू मेक आवर हेल्थ, we need to make our food choices like that ना। हम कुछ भी खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और प्रोटीन भी ले रहे हैं, वो डाइजेस्ट कहाँ होगा? अगर आप प्रोटीन नीड्स टू बी डाइजेस्टेड, वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। अगर आप जिम जा रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप लीन खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, देन देयर इज़ नो that it will harm you, no chance that protein will harm you। लेकिन अगर आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, फ्राइड भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, then protein is definitely going to harm you, right? I am in a way कि हमें होममेड प्रोटीन्स लेने चाहिए, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो वे प्रोटीन्स की, अच्छे ब्रांड का अगर हम वे प्रोटीन लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। We should see the brand before consuming it। आपने मेंशन किया कि घर का प्रोटीन लेना चाहिए, तो आप घर पे कैसे, आपने नट्स बोला, क्या क्या डाल के क्या कैसे बना सकते हैं? हम इसमें फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट कर सकते हैं, चिया सीड्स को रोस्ट कर सकते हैं, आपके आलमंड्स आ गए, आपके कैशू नट्स आ गए, आपके सनफ्लावर सीड्स आ गए, वाटरमेलन सीड्स आ गए, सभी तरह के सीड्स को हम रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसका फाइन पाउडर बनाएंगे, और एवरी डे वी कैन हैव 1 स्कूप इन अवर मिल्क और वाटर। अगर आप मिल्क का इंटॉलरेंस नहीं है तो यू कैन हैव इट इन मिल्क, नहीं अगर आपको मिल्क सूट करता तो यू कैन हैव इट इन वाटर। आपने मिल्क इंटॉलरेंस की बात की, आजकल बहुत लोगों को मिल्क इंटॉलरेंस है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज नथिंग इज़ प्योर नाउअडेज। आप देखिए ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं रहा, दे आर यूजिंग वेरी मच ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड ऑल। इन सब चीज़ों की वजह से वी आर नॉट गेटिंग द प्योरेस्ट टाइप ऑफ थिंग्स। काऊ है, उसको इतने इंजेक्शंस लगते हैं, उसके बाद दूध आपके पास आता है। ऑल दीज अडल्ट्रेशंस की वजह से वी आर नॉट गेटिंग द राइट थिंग, इसी वजह से ये इतनी चीज़ें होती हैं। पहले हम कहाँ ये सब चीज़ें सुनते थे, अब लेकिन दोबारा ट्रेंड आ रहा है। कुछ ब्रांड्स हैं जो ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक चीज़ें ला रहे हैं। मिल्क का तो वी कांट हेल्प, वी हैव टू ट्रस्ट ऑन द वेंडर इज़ गिविंग अस द मिल्क, पर वी कैन मेक ऑर्गेनिक चॉइसेस। आजकल मार्केट में ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक चावल आ रहे हैं, वी कैन स्विच टू दैट। एनीबडी हु इज़ ग्लूटेन इंटॉलरेंट, उसके लिए वो क्या डाइट फॉलो करें?
आजकल तो ग्लूटेन फ्री लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। आई डू रिमेंबर 10 साल पहले मेरे पास कोई क्लाइंट आता था, इट वाज सो टफ मदर्स के लिए घर में उनके लिए ग्लूटेन फ्री ब्रेड बेक करना या ग्लूटेन फ्री चीज़ें उनको देना। लेकिन नाउअडेज़ तो मार्केट में हर जगह होम बेकर्स हैं जो आपको ग्लूटेन फ्री कुकीज़, ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स, एवरीथिंग, इवन होटल्स में आप जाओ वहाँ पे आपको ग्लूटेन फ्री चीज़ें मिल जाती हैं। आजकल it isn't very much difficult to do gluten free diet, आजकल easy हो गया है। प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड का डिफरेंस क्या है? Basically it all depends on you, what kind of diet do you want to have. Both have pluses and both have minuses, right? Plant based diet है जहाँ पे हम full plant पे रिलाई करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज पे रिलाई करते हैं विच कम फ्रॉम द ग्राउंड, राइट। और एनिमल कार्निवोरस डाइट में वी रिलाई ऑन फिश, मीट, चिकन फॉर प्रोटीन सोर्स। दोनों में से कोई डाइट बुरी नहीं है, पर ये है कि प्रोपोर्शन सही हो और आपका यू आर लुकिंग कि आप क्या खा रहे हो बिफोर पुटिंग इट इन प्लेट। यू शुड नो व्हाट यू आर ईटिंग। अगर दोनों में बैलेंस है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अच्छी हैं। Nobody is king of the diet, neither this plant-based, neither carnivores. It all depends on your personal choices. So I give 50-50 to each. What is keto diet? Keto diet is a diet, basically when we diet, when a person diets, क्या होता है, हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देते हैं, राइट, और हम अपना बढ़ाते हैं, प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं, फाइबर इंटेक बढ़ाते हैं। कीटो इज़ अ डाइट जिसमें हम अपना फैट कंटेंट बढ़ाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे लीवर में कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। वो क्या होता है, कीटोन्स जो है वो हमारे फैट को ईट करते हैं, दे ईट आवर फैट। बट आई विल से फॉर मी इट्स अ बिग नो, क्योंकि कीटोन्स बॉडी में प्रोड्यूस करना इज़ नॉट ए गुड आइडिया। कहीं ना कहीं वो आपके लिवर को हार्म करते हैं। ये आजकल एक क्विक फिक्स हो गया है कीटो डाइट। क्या उसका रीज़न क्या है, यू आर गेटिंग टू ईट एवरीथिंग, चीज़ खा लो, चिकन खा लो, पनीर खा लो, सारा फुल फैट फूड खा लो, शुगर ज़ीरो कर दो, कार्ब्स कम कर दो, फाइबर थोड़ा कर दो। लेकिन आगे जाके क्या होता है, व्हेन यू डिसकंटिन्यू दिस डाइट ना, यू गेन डबल अमाउंट ऑफ वेट। ओके, क्योंकि यू स्टार्ट ईटिंग कार्ब्स, इसमें कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेना, यू हैव टू सर्वाइव ऑन जीरो कार्ब्स, बट यू कैन सस्टेन ऑन कीटो डाइट फॉर एवर। और बॉडी में कीटो प्रोड्यूस करना इज़ नॉट ए good idea. I don't think it is good to produce ketones. It's better to do a low carb diet rather than going for keto. For me, keto is needed जब बहुत worst case हो, when a person is super obese, हिल नहीं पा रहा है या बहुत उसको medically बहुत challenges हैं, then in my 10 years of career, I have just done 2 ketos because I don't feel doing keto is safe because of the ketones which are produced in the body. So it's not that very good diet. राइट। अभी आपने बोला हिल नहीं पा रहा, बहुत लोगों का वेट स्टक हो जाता है, तो उनको क्या करना चाहिए? जब हमारा वेट स्टक होता है उसके लिए हमारी डाइट्स होती हैं जिनको हम प्लेट्यू ब्रेकिंग डाइट्स कहते हैं। उससे ये प्लेट्यू आ जाता है। इफ़ यू आर ऑन ए डाइट, आपका टारगेट है 20-25 kgs, आफ्टर 10 kgs प्लेट्यू आता है, नहीं वर्क कर रहा, आप कैलोरी डेफिसिट में भी कर जा रहे हो फिर भी नहीं हो रहा, आप अपना एक्सरसाइज बढ़ा रहे हो फिर भी नहीं हो रहा, वाटर इनटेक बढ़ा रहे हो, फाइबर बढ़ा रहे हो, उस टाइम पे हमें एक ब्रेक लेके प्लेट्यू ब्रेकिंग डाइट्स आती हैं वो करनी चाहिए। उनसे प्लेट्यू ब्रेक होगा और फिर से दोबारा से हम वेट लॉस प्रोसेस में जा सकते हैं। I get bloated a lot. Yeah. So for people who get bloated, what should they do? फूड ब्लोटिंग हमारी किचन में बहुत कुछ है। स्पाइसेस हम ब्रू कर सकते हैं, हम कंकॉक्शंस बना सकते हैं अपने ही किचन के इंग्रेडिएंट्स से। सिनेमन है, सौंफ है, आपका अजवाइन है, आपका ज़ीरा है, इसको बॉईल करके अर्ली मॉर्निंग अगर हम कंकॉक्शन लें, इट्स वेरी गुड फॉर अस। We should keep ourselves hydrated, we should eat on time, we should sleep on time. This will stop bloating. You said sleep on time. So how is sleep related to diet? Sleep is very much connected to diet. Because if you are not taking proper sleep, आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज कर लो, आप डाइट कर लो, आप कुछ भी कर लो, it's not going to work on it. Our body needs to rest. 8 hours की नींद, 7 to 8 hours की नींद is must for everything. मैं कहती हूँ there are GENES, 5 things which are very essential for our life. G is gut health, E is exercise, N is nutrition, E again is your mental health, and S is your sleep.
These 5 things is very important in your life. तो स्लीप इज़ वेरी मस्ट. कई लोग कहते हैं हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा मैम, हम सब कर रहे हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम अपना प्रोटीन इंटेक हमारा अच्छा है, वाटर इंटेक अच्छा है, फाइबर अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड, वेट क्यों नहीं जा रहा. बाद में पता चलता है दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप. उसका कारण हो सकता है माइट बी दे हैव एंग्जाइटी, या somebody इज़ वर्किंग, दे डोंट, somebody हैज़ अ स्मॉल किड एट होम. लेकिन जब तक आपका स्लीप साइकिल पूरा नहीं होगा, एनी नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क ऑन इट. अब जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो इफ़ समबडी इज़ गोइंग थ्रू दिस इमोशनल टर्मोइल, वो लोग बिंज ईट बहुत करते हैं. सो व्हाट डू यू हैव टू से फॉर देम, बिकॉज थ्रू आउट द डे वो पूरा डाइट फॉलो करेंगे, जैसे ही रात होगी बिंज ईटिंग स्टार्ट हो जाएगा. बिंज ईटर्स के लिए इनिशियली तो मैं कहती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग करो. उससे आपको पता होगा दैट आफ्टर 7 और 8 यू डोंट हैव टू ईट एनीथिंग. कई लोग जो नहीं कंट्रोल कर पाते हैं उनको मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि स्टॉप बिंज ईटिंग, क्योंकि मुझे पता है जब तक वो अपनी एंग्जाइटी पे वर्क नहीं करेंगे, मेरे कहने से वो रुकेंगे नहीं. उन लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें थिंग्स हम कस्टमाइज़ करते हैं जो लेट नाइट भी लेने से उस चीज़ का उनको हार्म नहीं होगा. जस्ट लाइक मखाना, घी रोस्ट कर दिए मखाना, या हमने चना, भुना चना, पफ्ड राइस हो गया, ऐसी चीज़ें जो कार्ब्स में कम है और रात को खाने से उनको हार्म ना हो, वो हम उनको 2-3 स्पून पिंच करने को दे देते हैं, क्योंकि यू कैन स्टॉप दिस थिंग्स. जब तक उनको अंदर से रियलाइज़ नहीं होगा कि बिंज ईटिंग नहीं करना चाहिए, तब तक आप यू कैन गिव देम गुड ऑप्शंस टू बिंज ना. एकदम से नोबडी कैन स्टॉप अनलेस एंड अनटिल उनको खुद से पता नहीं चलेगा कि हमें बिंज नहीं करना है. आजकल एक ट्रेंड आया है ओजेम्पिक का. करण जौहर, बिग नेम्स आर डूइंग इट. Why are they doing it, and is it good for health? Ozempic or Marijuana is basically a drug. Right. Yeah, it is used to treat type 2 diabetes. अब इससे क्या होता है, इससे जब हम ये, इट्स बेसिकली अ वैक्सीन विच इज़ टेकन वीकली. जैसे ही हमारी बॉडी में जाती है, हमारे GLP-1 GLP-T रिसेप्टर्स जो है वो हमारे हो जाती हैं एक्टिवेट. उससे क्या होता है, हमारे जो शुगर लेवल्स डाउन होने शुरू हो जाते हैं, एज अ रिज़ल्ट हमारा वेट कम होने लगता है. बट जो बंदा डायबिटिक नहीं है और वो ये चीज़ें यूज़ कर रहा है, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया. इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं. जो प्राइमरी प्रॉब्लम्स हैं वो है नॉशिया, वॉमिटिंग. ये तो एक है, चलो जी, नॉशिया है, वॉमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स आजकल आने लग गई हैं. आई हैव हर्ड दैट 90 डेथ्स हैव ऑकर्ड बिकॉज ऑफ दिस ओजेम्पिक सिंस इट केम इन इंडिया. और वो भी आई रेड इट थ्रू ए वेरी नोन न्यूज़पेपर. इट कांट बी फेक. पूरे उसके साथ था, unless and until we don't anything, I don't know why people do it. राइट, इट्स अ ड्रग, यूज़ इट एज अ ड्रग. अगर कोई बिल्कुल बेड रिडन है, वो 500 kg है, डायबिटिक है, एंड इफ़ ही नीड्स टू लूज़ वेट इन एमरजेंसी, तो उसके लिए तो इट्स अ मिरेकल ड्रग, बट नॉट फॉर एवरीबडी. और ओजेम्पिक फेस, यू मस्ट हैव सीन दोज पीपल, क्या होता है, इससे मसल लॉस होता है. आपके फेस के मसल्स ड्रॉप हो जाते हैं, आपका जॉ ड्रॉप हो जाता है, आपके शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं. मसल लॉस है, वो दिखता नहीं है. वेट हमारा कम हो रहा है, पर कहाँ से हो रहा है, मसल पूरा हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है. और अगर किसी ने ओजेम्पिक करना भी है ना, ही शुड टेक केयर कि प्रोटीन पूरा चाहिए, एक्सरसाइज पूरी चाहिए, और फेस पे तो आता ही आता है. अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नीड इट, प्लीज़ डोंट डू इट. नेवर गो फॉर शॉर्टकट्स जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपके पैनिक्रियाज पे भी असर करता है. मैंने काफ़ी केसेस सुने हैं कि रप्चर कर चुके हैं लोग अपनी पैनिक्रियाज, अपना लिवर रप्चर कर चुके हैं. इतनी ज़रूरत क्या है, इफ़ वी हैव अदर वेज, इफ़ वी कैन डाइट, वी कैन एक्सरसाइज, अगर एक हेल्दी रूटीन से हम वेट लॉस कर सकते हैं, वाई टू गो फॉर शॉर्टकट्स. और ऐसे शॉर्टकट्स विच आर फेटल फॉर अस. जस्ट लाइक ओजेम्पिक वी स्पोक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर पीना चाहिए बिफोर द मील. सो इज़ इट इफेक्टिव? इट इज़ इफेक्टिव इन अ वे, क्योंकि आपकी शुगर स्पाइक्स को कम करता है, या आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, या आपके डाइजेशन में इम्प्रूव करता है. ये आपको डायरेक्टली वेट लॉस नहीं देता है, बट इट एड्स इन वेट लॉस. राइट, आप इसको ले रहे हो, यू आर कंज्यूमिंग, इससे आपका शुगर स्पाइक कम हो गया, आपका डाइजेशन बेटर हो गया. तो ऑन द अदर वे, बेशक ये डायरेक्टली नहीं कर रहा है, पर इनडायरेक्टली ये आपको हेल्प कर रहा है. इट डजंट डू वेट लॉस डायरेक्टली, बट इट डज help us in other things like digestion and or gut health and other things. Yeah, it's good to have apple cider before meals. ऐसा कुछ बता सकते हैं which are like 5 best ingredients that we should have?
बेस्ट इंग्रेडिएंट्स फॉर आवर गट, मिंट, कोरिएंडर, लेमन, अगर एंड कुकम्बर। हम अगर ये डिटॉक्स वाटर प्योर एंड नाइट बना के रखते हैं और अदर डेज को कंज्यूम करते हैं, इट्स वेरी हाइड्रेटिंग, गुड फॉर स्किन, गुड फॉर गट, गुड फॉर एवरीथिंग, इट्स वेरी गुड। वी कैन हैव इट डिटॉक्स वाटर ओवरनाइट। और हम कई फ्रूट्स को भी फर्मेंट करके उसका भी डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो समर्स के लिए सारे जो आपने डिटॉक्स वाटर हाँ, बोले वी ये कैन friendly हैव, या दे आर ऑल Right. फ्रेंडली। अब ये है कि सर्दियों में हम कंकॉक्शंस को बॉईल करते हैं, और जब समर्स आते हैं वी डोंट नीड टू बॉईल, वी जस्ट नीड टू सोक देम, स्टेन देम एंड हैव देम। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में डिफरेंस क्या है? प्रीबायोटिक इज़ फाइबर, जिसे हम सैलड बोलते हैं, जो हम अपने खाने से पहले लेते हैं। हमारी रेडिश हो गई, ककम्बर हो गया, कैरेट्स हो गए, अनियंस हो गए, जो सैलड होता है पोर्शन, दैट्स कॉल्ड प्रीबायोटिक। एंड प्रोबायोटिक इज़ कर्ड, कैफिर, हमारी ड्रिंक्स लाइक खम्बूजा हो गई, हमारा ये मट्ठे हो गए, दैट इज़ प्रोबायोटिक, राइट। अब हम कांजी बनाते हैं, दैट्स अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। ठीक है, कांजी, गाजर की कांजी एंड बीटरूट की कांजी, दे आर वेरी गुड फॉर गट, बोथ थिंग्स आर इक्वली गुड फॉर अस। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फूड इज़ वेरी गुड फॉर अस। आपने अभी कंबूजा मेंशन किया था, वैसे आजकल लोग ना किमची खा रहे हैं पतले होने के लिए, सो व्हाट इज़ एन ऑल्टरनेटिव, और कुड यू टेल हाउ व्हाट कैन वी ईट इन इंडिया बिकॉज इट्स नॉट ईजिली अवेलेबल? Kimchi is not our native food. We should go for things which are native. हमारे यहाँ पे जैसे दही चावल, हमारे रात के बचे हुए चावल हैं, उनको अगले दिन अगर हम कर्ड डाल के फर्मेंट रात को कर दें पानी में, नेक्स्ट डे उसमें कर्ड डालें, फिर राई का, कड़ी पत्ते का तड़का लगाएं, उससे अच्छा हमारे गट के लिए कुछ नहीं हो सकता। हमारा जो खिचड़ा, जिसे हम साउथ में खिचड़ा कहते हैं, हमारे यहाँ पे खिचड़ी कहते हैं, दाल की खिचड़ी, चावल की खिचड़ी, इतना कंफर्ट फूड है ना। उसके ऊपर आप अच्छे से देसी घी डाल के उसको कंज्यूम करो, हमारा गट और हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर आपका नींबू का अचार, जो हमेशा अंडररेटेड है, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ probiotic food. We should take pickles most often, or without oil pickles, not the pickles जो तेल में डूबे हुए हैं, but the pickles, instant pickles हैं जिनमें तेल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। अम्बी का अचार हो गया, आपकी हरी मिर्च इज़ गुड, हरी मिर्च का अचार हो गया, हर चीज़ का अचार। मुझे याद है हमारी दादियाँ नानियाँ हर चीज़ के अचार डाल देती थी। गाजर आई है अचार डाल दो, मूली आई है अचार डाल दो। अब वो चीज़ कहीं ना कहीं खोई जा रही है और यही फैंसी होके वापस आ रही है। हमें अपनी किचन की चीज़ें ही हैं, यही हमारा प्रीबायोटिक है, यही हमारा प्रोबायोटिक है। राइट। अभी आपने मेंशन किया था घी डाल दो खिचड़ी के ऊपर, ऐसा बोला जाता है कि घी नहीं खाना चाहिए, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव रिमूव्ड घी कंप्लीटली फ्रॉम देयर डाइट। घी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वेदर हमारी बोन फंक्शनिंग के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे गट के लिए, हमारी स्किन के लिए घी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बट वी शुड माइंड इट, वो गाय का घी होना चाहिए, येलो कलर में होना चाहिए। कई क्लाइंट्स जिनका मुझे पता है कि दे डोंट चीट ऑन मील्स, उनको मैं मॉर्निंग में 1 चम्मच घी कोसे पानी में देती हूँ पीने के लिए, उनके कॉन्स्टिपेशन के लिए। पीपल आर कॉन्स्टिपेटेड फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स, क्यों जी? हमने घी तेल छोड़ दिया है। व्हेन आई ऐड दिस घी वाला पानी इन देयर रूटीन, उनका गट क्लीन हुआ है, उनकी स्किन इश्यूज़ हुए हैं, उनका मेंटल फॉग खुल गया है, क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज़ है विच इज़ वेरी मच नीडेड। अगर हम अपनी कैलोरीज कम करने के चक्करों में घी तेल अपनी लाइफ से हटा देंगे, हमारी मोबिलिटी कैसी रहेगी हमारे बॉडी पार्ट्स में? घी बहुत एसेंशियल है, उसको कट नहीं करना चाहिए। रादर अपने फैंसी तेल आप कट करें। मेरी माने तो सरसों का तेल में हमें खाना बनाना चाहिए, देसी घी में खाना बनाना चाहिए, और हमें ऑलिव ऑयल सिर्फ ड्रेसिंग्स के लिए रखना चाहिए। राइट। और ये नहीं है कि मैंने बोला तेल तो हम नहला दें चीज़ें, स्पून से मेजर करके हमें अपना खाना बनाना चाहिए। या आजकल ओवर हाइप हो गई हैं, ब्लैक कॉफ़ीज़ में घी डाल के पी रहे हैं। हमारे देसी बुजुर्ग तो पानी में डालते थे, अब उसको और फैंसी कर देते हैं। कहते हैं कॉफ़ी, हम ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं सो दैट हम जिम जा रहे हैं तो हमें एनर्जाइज हो जाएं। अब उसी में हमारे ही घी को डाल के हमें ही पिलाया जा रहा है। अब चाहे उसको घी को कॉफ़ी में डालें या पानी में डालें, रिजल्ट्स इक्वल होंगे। कॉफ़ी हैज़ कैफीन, हमें एक एनर्जी बूस्ट देती है, वो काम आपका घी पानी भी कर देगा। आपने बहुत स्किन को मेंशन किया कि तो हमें व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड टेक टू हैव अ बेटर स्किन?
फॉर ए ग्लोइंग स्किन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सुबह उठ के पहले पानी पीना चाहिए। उस पानी में हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने चाहिए जो हमारे गट को क्लीन करें। अगर आपका गट क्लीन होगा आपकी स्किन क्लीन होगी। उसके बाद हमें अपने नट्स को नहीं भूलना चाहिए। एवरी डे हमें आलमंड्स, कैशू, पिस्टैचो इन ए लिमिटेड क्वांटिटी कंज्यूम करना है। हमें वॉलनट नहीं भूलना, इट्स वेरी गुड फॉर हेयर। उसके बाद हमें अपने चिया सीड, फ्लैक्स सीड या मिक्स सीड का 1 चम्मच लेना है। फिर हमें प्री लंच, प्री ब्रेकफास्ट हमें ज़रूर एक फ्रूट लेना है। फिर एक फ्रूट हमें 12 ओ क्लॉक ज़रूर लेना है। और मील्स में हमें अपना जो भी मील हम कुक करते हैं क्लीन लेना है। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का ध्यान रखना है। फिर स्किन का ग्लो कहीं नहीं जाएगा। ओके। यू वोंट नीड एनी फैंसी फेशियल्स, फैंसी ट्रीटमेंट्स। अगर आपका गट क्लीन है और आप हेल्दी खा रहे हो, यू वोंट नीड सुपरफिशियल ट्रीटमेंट्स फॉर यू, राइट। समर्स के लिए बहुत लोगों की तस्वीर गर्म होती है, तो उनको क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए? समर के लिए हमारा छाछ, मट्ठा, आपकी कांजियाँ हो गई, आपकी ये नींबू पानी हो गया, आपका बादाम का अगर आप घर पे बना रहे हो विदाउट शुगर और नट्स को भिगो के आप ड्रिंक तैयार करते हो, वो हो गई। बहुत सारी चीज़ें जो हम समर्स में, आपके फ्रूट जूसेस हो गए। और अब अगर हमें घर पे फ्रूट के जूसेस निकालने हैं तो वी शुड माइंड कि हम पल्प के समेत जूसेस लें। ओके। आजकल गोंद कतीरा हमारा फैंसी पैकिंग्स में आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं हमारे एंसेस्टर्स कितनी जनरेशन से इसे यूज़ कर रहे हैं। गोंद कतीरा हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे बेसल सीड्स, इसको सोक करके हम इसकी ड्रिंक्स बना सकते हैं। इसमें लेमन ऐड ऑन करके हम घर पे गुलाब का सिरप बना सकते हैं कम शुगर में। हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो गुलाब का शुगर है उसकी तसीर बहुत ठंडी होती है। और अगर हम उसको घर में बना रहे हैं और कम शुगर में बना रहे हैं, जो लोग डायबिटिक नहीं है या जो उनको वेट लॉस इश्यूज़ नहीं है, उनके लिए ये ड्रिंक बहुत अच्छी है। PCOD, PCOS इज़ ऑन द राइज, तो उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें अपने डाइट से निकाल देनी चाहिए? सबसे पहले तो पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड हमें बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए इफ़ यू आर फेसिंग दीज थिंग्स। सब जो पैक है वो हेल्दी नहीं है। अगर ऊपर जिप लगा है, प्रिजर्वेटिव्स ज़रूर उसमें डले हुए हैं। हमें अपनी किचन का फ्रेश मील ही खाना है PCOS और PCOD में। हमें बाहर का रेस्टोरेंट्स का खाना भी नहीं खाना। रेस्टोरेंट चाहे 5 स्टार हो, 3 स्टार हो, 2 स्टार हो, पाम ऑयल यूज़ होता है। चाहे कितना फैंसी हो, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जो अच्छे ऑयल यूज़ करता है। आई हैव सीन कि रेस्टोरेंट में हमेशा टू कट द कॉस्ट दे डोंट यूज़ द गुड ऑयल। पाम ऑयल में जब खाना बनेगा या आपके चिप्स आते हैं, आपके बिस्किट्स आते हैं, आप ज़रूर पढ़ें उसमें पाम ऑयल लिखा होता है। जिसमें ये चीज़ें हैं आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। इसीलिए बेटर है कि आप घर का बना खाना खाएं, होल फूड खाएं, लेग्यूम्स खाएं, दालें खाएं, सब्जियां खाएं, नट्स खाएं, फ्रूट्स खाएं। अगर आप प्रोपोर्शन कंट्रोल में रखेंगे, एक्सरसाइज रूटीन में करेंगे और बाहर का प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएंगे, पैक्ड खाना नहीं खाएंगे, विद इन 3 मंथ्स आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इंस्टेड फेशियल हेयर इसका एक सिम्टम है, वो भी आपका धीरे धीरे वैनिश होना शुरू हो जाएगा अगर आप गट को क्लीन रखेंगे और ईटिंग अपनी अच्छी रखेंगे। हेयर लॉस नहीं होगा, सारी चीज़ें आपकी सिंक में आ जाएंगी अगर आप घर का खाना शुरू करना शुरू करते हैं तो। Why is hair loss happening at a young age? द मेजर रीज़न ऑफ हेयर लॉस मे बी कि उनकी न्यूट्रिशन पूरा नहीं है खाने में, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट दे आर ईटिंग। एंड द सेकेंड रीज़न मे बी एंग्जाइटी और डिप्रेशंस, उसकी वजह से भी वी लूज़ आवर हेयर। मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वॉट यू आर पुटिंग इन योर गट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये दोनों चीज़ें जब सही होंगी तो हेयर लॉस कभी नहीं होगा। आई हैव सीन पीपल हु गॉट देयर हेयर बैक आफ्टर प्रॉपर मेडिटेशन एंड आफ्टर प्रॉपर फूड पैटर्न उन्होंने अपना ठीक किया है, फूड रूटीन ठीक की है, दे अगेन स्टार्टेड गेनिंग देयर हेयर। तो दीज आर द 2 बेसिक थिंग्स, वन इज़ योर फूड एंड द सेकेंड वन इज़ योर मेंटल हेल्थ। PCOD, PCOS पेशेंट्स को मोस्टली थायराइड भी होता है, तो थायराइड के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे उसको हम रिवर्स कर सकते हैं?
पहले तो थायराइड को हम किसी भी चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम कम मेडिकेशन पे आ सकते हैं। अगर तो हम 120 mg ले रहे हैं, हम 100 से 80, 80 से 50, 50 से 35, 35 से बेसिक 12.5 डोज तक आ सकते हैं। वो हम प्रॉपर एक्सरसाइजिंग और प्रॉपर फूड से ही आ सकते हैं। हमें प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, हमें होल लेग्यूम्स लेने हैं, हमें नट्स लेने हैं। हेज़लनट इज़ वेरी गुड फॉर इट। हमें, क्योंकि उसमें सेरोटोनिन होता है जो हमारे थायराइड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमें ऐसी चीज़ें लेनी है जो हमारे थायराइड हेल्थ के लिए अच्छी हो, और हमें होल ग्रेन्स लेने हैं, होल ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स लेनी है। ओमेगा 3 है, अगर हमारे फूड में रिच नहीं है ओमेगा 3, हमें फ़िश खानी है हफ्ते में 3 बार, और अगर हम वेजिटेरियन हैं हमें इसका सप्लीमेंट लेना है। अगर हम अपने वाइटामिन्स, अपने ओमेगा 3, अपने मिनरल्स हमारे बॉडी के बैलेंस रखेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा थायराइड भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपने सप्लीमेंट्स मेंशन किए, तो हमें आयरन अगर डेफिशिएंसी हो तो कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए? I don't give supplements, right? I'm not a physician. I won't give the supplements, but I can tell the food जिनका आयरन ज़्यादा है हम वो कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे बनाना हो गया, बनाना तो एक टैबू बन गया, पीपल डोंट टेक बनाना, दे थिंक कि हमारा बनाना से वेट गेन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली बनाना से वेट गेन नहीं होता है। बनाना अगर आप टाइम पे खाएं, इसका एक प्रॉपर टाइम है। मॉर्निंग में आप बनाना ले रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म। बनाने में इतने न्यूट्रिएंट्स हैं कि उसको हमेशा अंडररेट किया जाता है, ये सोच के कि इससे वेट बढ़ जाएगा। बट इफ़ यू कंबाइन बनाना विद योर मिल्क और अदर थिंग्स, तब वेट गेन हो सकता है। बनाना कांट मेक यू गेन वेट ऐसे विदाउट एनी रीज़न, वेट नहीं गेन होगा। बनाना, आयरन हो गया, आयरन जिन चीज़ों में है वो हमें कंज्यूम करना चाहिए। जैसे ओट मील है आपका, ओट मील हो गया, बनाना हो गया, ये चीज़ें हमारे आयरन लेवल के लिए अच्छी हैं। डेट्स हो गई, आपकी सीड्स हो गए, आपके नट्स हो गए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी हैं आयरन लेवल रेज़ करने के लिए। What's the most famous recipe of yours which is good for skin and hair? I usually do give a लड्डू to my clients, लेकिन शर्त यह है कि you don't have to make a big लड्डू, क्योंकि Okay. उससे कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी। We have to make small coin sized laddus and consume one laddu every day, right? And we have to put in it almonds हो गए, cashew nuts हो गए, walnuts हो गए, sunflower seeds हो गए, flax seeds हो गए, आपके chia seeds हो गए। पर chia seeds हमें डायरेक्टली नहीं डालने, we have to soak them for a night before putting in the recipe। और चना दाल हमें एक रात पहले सोक करनी है। नेक्स्ट डे हमें इन सब चीज़ों को अलग अलग ड्राई रोस्ट करना है, ग्राइंड करना है। अगर कोई डायबिटिक नहीं है, हम इसमें थोड़ी जैगरी डाल के वी कैन बाइंड अ लड्डू विद इट। और जैगरी के अलावा वी हैव वन मोर ऑप्शन, हम डेट्स इसमें डाल के फॉर बाइंडिंग एंड फॉर स्वीटनेस वी कैन मेक स्मॉल लड्डूज एंड कंज्यूम एवरी डे। इफ़ यू आर हैविंग दिस लड्डू फॉर अ मंथ, you will see a drastic change in your skin and hair। हेयर हमारे बहुत ही हेल्दी हो जाती है, हमारी स्किन ग्लो करने लगती है। ये ब्रेकफास्ट से पहले या वी कैन कंज्यूम इट एट एनी टाइम ऑफ अ डे, लेकिन आई डू रिकमेंड कि अगर हम इसको मॉर्निंग में लें, ताकि अगर इसमें थोड़ी कैलोरीज भी हैं तो हमारी वो बर्न हो जाए। आजकल बहुत लोगों का सिडेंट्री लाइफस्टाइल है बिकॉज मोस्ट पीपल आर वर्किंग 9 to 5 और हम बैठे रहते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा डाइट और रूटीन ठीक रहे? सिडेंट्री लाइफस्टाइल के लिए सबसे पहले मैं बोलूँगी, इन बिटवीन योर वर्क आपको हर 1 घंटे के बाद मेक श्योर कि आप 50 से 100 कदम चलें। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि वी आर वर्किंग, वी कांट स्पेयर दैट मच ऑफ टाइम। फिर भी हर 1 घंटे के बाद 3 से 5 मिनट हमें खड़े रहना चाहिए और चलना चाहिए। और बैठे बैठे हमें अपने पाँव को, हाथ को मूव करना चाहिए। वी शुड कीप ए पानी का बॉटल बाय आवर साइड, उसमें हम लेमन और चिया सीड्स डाल के रखें। वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि वो हमारे टमी एरिया पे फैट को इंक्रीज़ नहीं होने देगा, और उससे वेट गेन का जो चांस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और जो भी हम खाना खाएं, हमें अपने पोर्शंस माइंड करने हैं, और हमें मेक श्योर करना है कि बिफोर एवरी मील वी हैव टू टेक ए प्लेट ऑफ सैलड। चाहे वो आपका सैलड ग्रीन सैलड है, चाहे स्प्राउटेड सैलड है, चाहे किसी चीज़ को आपने बॉईल करके, चना सैलड, ब्लैक चना सैलड, वाटरमेलन सैलड, इतने सैलड्स हैं जो गट फ्रेंडली है, वो आपने कंज्यूम करना है। उसके बाद आपने अपना एक मील का पोर्शन लेना है, और उसका भी आपने क्वांटिटी माइंड करनी है कि इट शुडंट बी मोर देन अ कटोरी। अगर आप दाल चावल खा रहे हो, वो आपके फिस्ट के जितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना। उससे क्या होगा, चांसेस कम होंगे कि हम बैठे बैठे वेट गेन कर लें। एंड आफ्टर एवरी मील वी शुड
शुड कंज्यूम सौंफ, अजवाइन, ज़ीरे का एक बुन के हम अपने पास रख लें, ताकि हम उसको मील के बाद अच्छे से खाएं, च्यू करें, ऊपर से पानी पिएं, ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए। ये चीज़ें हम करेंगे तो होपफुली उतने चांसेस नहीं रहेंगे कि हमारा वेट बढ़े। और अगर हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और आप सारे पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं, फिर भी मॉर्निंग या इवनिंग में आपको 7000 स्टेप्स ज़रूर ऐड ऑन करने हैं। वो आपके लिए फिर आपको हेल्प करेगा, ताकि आपका बिल्डअप फैट नहीं करेगा बैठे बैठे। राइट, जस्ट लाइक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत लोगों को स्ट्रेस की वजह से स्लीप इश्यूज है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? स्लीप इश्यूज आजकल बहुत हो गए हैं बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। वी कांट रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम पीपल्स लाइफ, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें, टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे स्ट्रेस थोड़ा कम हो। देयर इज़ अ काइंड ऑफ रेमेडी कि रात को सोने से पहले हम थोड़ा गुनगुना पानी लें, उसमें हम सम सॉल्ट डालें, हम उसमें लेमन के कुछ स्लाइसेस डालें और उसमें हम अपना फीट दोनों सोक करें। 5-10 मिनट हम आंखें बंद करके रिलैक्स करके हम अपने टॉक्सिन्स को रिलीज़ होने दें थ्रू फुट। फिर हम उसमें से अपना पैर निकाल के उसको आराम से पोंछ के हम कोई अच्छा ऑयल ले, उसके साथ हम अपने पैरों की फिंगर्स को और पैरों के तले को हम मसाज करें। आफ्टर दैट हम अपने बेड पे जाएं एंड वी हैव अ गुड कप ऑफ कैमोमाइल टी, नेटल टी, हम उसको पिएं और हम रिलैक्स होके, वरीज छोड़ के, थोड़ा सा ऑयल लेके अपने यहाँ टेम्पल्स पे, अपने नोज़ पे लगाएं और आराम से आंख बंद के लेट जाएं। इट हेल्प्स टू लॉट ऑफ पीपल, मे बी आगे ये हेल्प करे, काफ़ी लोगों को कर चुका है, इन फ्यूचर भी हेल्प करे लोगों को। राइट, कामनेस आती है। कामनेस आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी वरीज, जो भी दिन की वरीज है, वी हैव टू लीव देम एट वन पॉइंट। हम अगर उनको थोड़ा सा उस चीज़ से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकें तो स्लीप साइकिल ख़राब नहीं होगा। यूजुअली क्या होता है, जब इंसान रात को लेटता है ना, वो इतना बोझ लेके लेटता है कि वो उसी चीज़ को ओवर थिंक करता है। वो ओवर थिंकिंग से क्या होता है, स्लीप साइकिल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। इट्स बेटर अगर 5 मिनट आफ्टर हैविंग दिस कैमोमाइल और नेटल टीज़ को पीने के बाद आप 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके अगर मेडिटेट करें, वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे। As we are coming to an end, I wanted to ask you like a fun question. बहुत लोगों को टैबू होता है कि पता नहीं चलना चाहिए मैं डाइट ले रही हूँ, तो आप कोई अपनी स्टोरी ऐसे शेयर कर सकते हो? Yeah, I don't know why, पर doing diet is taboo. I have seen friends asking कि उसको नहीं पता चलना चाहिए कि मैं डाइट कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को नहीं पता चलना चाहिए, मेरी फैमिली को नहीं पता चलना चाहिए। अगर अब हमारे इंडिया में पार्टी कल्चर टैबू नहीं है, आई डोंट नो डाइट करना क्यों टैबू है। आप एक हेल्दी अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो, आप हेल्दी खा रहे हो, आप अपने आप के लिए कुछ कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई टू हाइड दिस थिंग्स। बस ये हुआ है कि पहले एवरीबडी क्लेम्स कि दैट वी आर ए डाइटिशियन, दे यूज टू गिव पीपल डाइट विदाउट उनकी हिस्ट्री लिए, बिना उनका पूरा जाने, ब्लड ग्रुप जानना होता है, हाइट, वेट, आपका लाइफस्टाइल, आपके फूड हैबिट्स जानने होते हैं, उसके बाद ही कस्टमाइज होती है। लोगों ने क्या किया, रैंडम प्लान सबको दे दिए और उससे क्या हुआ, हेयर लॉस होने लगा, स्किन खराब होने लगी, स्किन में सैगिंग आने लगी और इतना कैलोरीज कम दिया कि बिल्कुल बंदा लीन हो गया, उसका मसल्स ड्रॉप हुआ। अगर आप किसी को डाइट दे रहे हो, आपका प्रोटीन पूरा होना चाहिए, फाइबर पूरा होना चाहिए। इसी चीज़ से एक टैबू बन गया, लोग कहने लगे डाइट कर रही है, बड़ी बुरी लग रही है। और ये ना एक लाइन जुड़ गई कि जो डाइट करता है वो बुरा ही लगता है। ये टैबू ब्रेक करना है, बताना है कि डाइट में बुरा नहीं है। जो मैं कई क्लाइंट्स कहते हैं हम तो इतना खाना खा ही नहीं सकते, आपने इतना खाना दे दिया, हम मोटे हो जाएंगे। एंड आई एश्योर देम, अगर आप मोटे हो गए, मुझे आपकी जिम्मेवारी है। आप कम खा रहे हो, आप तभी पतले नहीं हो पा रहे हो। आप अपना जितना कैलोरीज आपकी बॉडी को चाहिए उतनी तो लो। बॉडी आपका फैट स्टोर कर रही है, अगर वो फैट स्टोर करेगी, रिलीज़ नहीं करेगी, तो आप पतले कैसे होगे। आप मेरा नाम लेके खाओ, 5 to 6 kgs ए मंथ आपका लूज़ हो जाएगा। ये जो टैबू है, ये कुछ डाइटिशियंस का ही बनाया हुआ है गेस, क्योंकि इतना कम डाइट दे दिया कि लोगों को नुकसान होना शुरू हो गया। इसी वजह से डाइट एक टैबू बन के रह गया है। पर ये अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है कि डाइट्स आर नॉट बैड। अगर आप किसी क्लिनिकल डाइटिशियन के पास जा रहे हो, तब आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा आपकी डाइट से। Thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you. My pleasure. Like, Share subscribe. to Dopamine High. Thank you. Thank you.